चारों तरफ गिरना है। यहाँ तक कि एक बीजू जनता दल के एमपी ने प्रिविलेज मूव किया। मेरी प्रिविलेज का क्या, मुझे भी नहीं बोला दिया जा रहा है। और बड़े बड़े वरिष्ठ महिला सांसद जिस प्रकार का व्यवहार कर रही थी, उससे क्लियर दिखता है कि वो चर्चा भी नहीं चाहते थे। दे हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। तो आज ये झूठ के आरोप पे और झूठे आरोप और झूठ आलोचना करके ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर एक्शन से बचने की आज कोशिश कर रहे हैं। Piyush ji, sir, polemic from India today. Mr. Pawar, who met with the chairman today, he has made a comment where he says that in his 55 years of parliamentary career, he's not seen a situation where women MPs have been assaulted, and a very serious charge where he says 40 men and women from outside were brought in as part of parliamentary security. Well, I've just now clarified that Mr. Pawar was wrongly informed, maybe by somebody. He's a very senior leader, but I've just given you the figures. All of the people were Parliamentary Security Service officials, marshals, 12 lady marshals, considering the women members, 18 male marshals, and male security personnel, my apologies, 12 and 18, 30 in total. So their figures are wrong, their allegations are wrong, they were outsiders who came in. And last but not the least, I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to introspect on the behavior of the opposition throughout the whole parliament session, to introspect whether the parties with which he is standing today, is that what he has seen in 40 years or 55 years of his parliamentary career? Has he ever seen this type of thing? Has he ever gone into the well of the house like this? Has he ever damaged property? He has always prided himself that NCP and his party don't go in the well, don't damage property, don't do unruly behavior. Then how can he condone the unruly behavior of his colleagues and his partners in the opposition? I would like to urge Honorable Shri Sharad Pawar ji to kindly look at the video footage of what has happened over there. Kindly see how the lady marshals were being assaulted. Does he condone that behavior of his opposition MPs, his colleagues? Does he condone the behavior of parliamentary security staff being strangulated? Has he forgotten what he saw on the 9th, tweeted by an honorable MP himself, proudly showing a senior Congress leader throwing the rule book, and not just an ordinary rule book, the one with all the leather on it and the big thick book, flinging it on the Secretary General and the chair. God forbid if it had hurt somebody, what would Shri Sharad Pawar ji say to that? Did he condemn that incident on the 9th? Did we hear a word from him on the 9th? I talked to his colleagues from the NCP even yesterday in the House, and they said, we are going to Mumbai. You finish the House business and adjourn Saturday. Lok Sabha is already adjourned. Now finish the business and let's go. So I think Honorable Shri Sharad Pawar ji should introspect on what he has seen, the behavior of his colleagues in the opposition, introspect on what he saw tweeted by his own colleagues in the opposition on the 9th, see it a series of events from the time the Prime Minister was not allowed to introduce his newly appointed ministers, and tell the nation whether he condones this behavior from 19th July to 11th August, whether he agrees with that behavior, whether he believes that it was justified, and whether without the presence of PSS, the Parliamentary Security Service, we could have protected the table office, people who are sitting on the table, whether we could have protected the dignity of the chair. And decisions of this nature are taken by the chair. And I would urge him not to cast aspersions on the chair without going into the merits and the truth of the matter, not get carried away by what some wrong propaganda that may be spread by some of his colleagues. पीयूष जी एक गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से, एक गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से कि जो मेल मार्शल हैं उन्होंने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, और वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव जो फुटेज है वो जारी किया जा रहा है, पूरा फुटेज जारी किया जाना चाहिए ताकि देखिए मार्शल्स या सिक्योरिटी स्टाफ
किसी पक्ष के नहीं होते, ना वो विपक्ष के हैं ना सत्तारूढ़ पक्ष के हैं, वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम करते हैं। और हमने तो किसको अपॉइंट नहीं किया है। ये मेरे ख्याल से इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप झूठे हैं और पूरे झूठ के आधार पे ये मैंने जैसे कहा ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इश्यू से डिविएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ध्यान में आ गया उनका मिसकंडक्ट का पर्दाफाश स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। राज्यसभा टीवी सीसीटीवी कैमराज में सब फुटेज तो होगी, तो वो अपने एक्शन से बचना चाहते सर हैं। भूपेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है, और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। क्या किसी भी सांसद को ये आचरण शोभा देता है? क्या ये आचरण शोभा देता है? जो अनुराग जी कह रहे थे, टेबल बैठने के लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है, खड़े होने के लिए नहीं होती। डांस करने के लिए कहाँ पे टेबल पर खड़े होने के लिए है? कौन सी दुनिया में कहाँ कौन से एटिकेट में लिखा है कि टेबल पे खड़ा हुआ जाता है? किताबें हमेशा ज्ञान लेने के लिए होती हैं, चेयर पे फेंकने के लिए नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि संसद के कानून और पेपर पढ़ करके लोगों के हितों की बात करने के लिए होते, फाड़ के फेंकने के लिए नहीं होते। आप आचरण एक के बाद एक देखिए संसद में, ये सारे आचरण कैसे हैं, इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने कहा हम डिवीजन करवाएंगे, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। तो विपक्ष का ये जो आचरण है, और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया, लोकतंत्र में कहीं हिंसा का स्थान नहीं है। संसद विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, हाथापाई करने के लिए नहीं है, और हाथापाई भी कभी भी किसी सांसद को कर्मचारी के साथ नहीं करनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी पे केवल काम करने आया है। Piyush ji, Sunil Prabhu, NDTV. I just wanted to ask you, usually you're a problem solver in trying to find a resolution to issues. In this issue, it was about Pegasus software and whether there should have been a discussion. What was the stumbling block in allowing a discussion on the floor of the House and, finding a resolution on this matter? Well, I think the Honorable Chairman made it very clear that when the government is suo motu coming out with a statement, if there is nothing to hide in that, the whole world knows government has suo motu come out with a statement. There is an established practice in the Rajya Sabha that after the minister's statement, members are allowed to seek clarifications, raise any questions. It could have given ample opportunity to everybody. They did not take that opportunity. They disturbed and this, in an unruly manner, did not allow the House to function. Chairman, even after that, gave an occasion, spoke from the chair and invited that if you all agree, I will ask the minister's convenience and invite him to give clarifications to whatever you have. And I think matters of this nature should be taken with more seriousness than the way they have taken. After look at the bills that were passed, deposit credit guarantee. It gives our depositors in banks insurance cover instead of 1 lakh, 5 lakhs. And within 90 days you get paid. Juvenile justice, it helps our children. Bill on limited liability partnership and insolvency, which will help MSMEs. There was a constitutional scheduled tribes order amendment bill, which affects the scheduled tribes of Arunachal Pradesh. Every one of the bills was in public interest, would have helped the country to progress, but sadly, even a bill to set up a central university in the Union Territory of Leh Ladakh was not accepted by them for a good discussion. I deplore and condemn the behavior of the opposition. One second, sir. Last question. 1 second. Sir.
तो आप ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। तो आप ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। पीयूष गोयल सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और सीधे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो कुछ भी संसद में 11 अगस्त को हुआ था, 11 अगस्त को जिस तरीके से जबरदस्त हंगामा हुआ, मार्शल तक को बुलाना पड़ा। पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा कि महिला मार्शल पर हमला किया गया और विपक्ष पर इसीलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि विपक्ष ने दरअसल सदन की गरिमा गिराई है, इसलिए विपक्ष पर कड़ी कार्रवाई हो और विपक्षी सांसदों ने रूल बुक फेंकी। ये तमाम बातें और कुछ वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं और कल भी बीजेपी ने भी बाकायदा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक वीडियो शेयर किया था। उसके बाद आज ये वीडियो जो सामने आ रहा है जिसमें जो महिला मार्शल हैं वो सांसदों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उन्हें दूर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन महिला मार्शलों से भी बदसलूकी इस वीडियो में कहा जा रहा है कि की गई। और इसको लेकर के अब सरकार विपक्ष पर हल्ला बोल है। सरकार यह कह रही है कि दरअसल विपक्ष अब नाटक कर रहा है और विपक्ष दरअसल इस पूरे मामले पर अपनी जो गलती है उसे ना देखते हुए सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है। दरअसल सदन की कार्रवाई बुरी तरह से बाधित रही और पेगासस मामले को लेकर के उसके बाद भी लगातार कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। लेकिन 11 अगस्त को जिस तरीके से जबरदस्त हंगामा हुआ, तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो टेबल पर चढ़ गए। संजय सिंह भी उनमें से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद भी ये वीडियो ट्वीट किया है जब वो सदन के अंदर टेबल पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भावुक नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी सदन में 11 अगस्त को हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, वो असंसदीय था और ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये देखिए लाल घेरे में ये महिला मार्शल हैं, वो विपक्षी सांसदों को हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस दौरान उनसे भी मुक्की हो गई। उनके साथ भी बदसलूकी इस वीडियो में नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष देखिए इस पर कुछ और कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सेलेक्टिव वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम में कुछ खास वीडियोज हैं जो निकाल करके सरकार शेयर कर रही है। लेकिन सरकार यह कह रही है कि जो दिख रहा है उसे तो नकारा नहीं जा सकता। अगर आपको सेलेक्टिव वीडियो नजर आ रहा है तो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी में सारे फुटेजेस लाइव गए हैं, उसे आप देख लीजिए। इस तरह से विपक्ष पर सरकार हमलावर है। प्रशांत देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक तरीके से वार पलटवार हो रहा है, लेकिन संसद और सदन के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, उस पर कहीं ना कहीं अब विपक्ष ही थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें उसके ही लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। देखिए, भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के मंत्रियों द्वारा अभी यहाँ पे की गई है और उसका पूरा विस्तार से उस पर चर्चा की गई। एक एक पॉइंट को उन लोगों ने डिस्क्राइब किया। जिस महिला सांसद को चोट लगने की बात विपक्ष उठा रहा है, पलट के एक मंत्री ने ये जवाब दिया कि जो आरोप ये लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि महिला सांसद को मारा गया, उनके हाथापाई की, उल्टा वो तस्वीरों में कुछ और दिखाई दे रहा है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बताएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई जिसमें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तमाम और बड़े नेता मौजूद थे। एक साथ करीब 5-6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, और मुद्दा सिर्फ वही था कि किस तरीके से विपक्ष ने इस तरीके का करने नहीं दिया गया, लगातार संसद में गतिरोध बना के रखा था और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। तो जो आज सुबह राहुल गांधी ने और तमाम 14 विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया, उसका पलटवार करते हुए सिलसिलेवार ये जवाब दिया कि किस तरीके से सरकार चर्चा चाहती थी लेकिन विपक्ष जो है अड़ा हुआ था। यहाँ तक कि पीयूष गोयल ने यह बात भी कही कि पहले दिन से योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके सत्र को नहीं चलने देना, मनमानी करना, ये विपक्ष पूरा तय कर चुका था। ये भी कहा मंत्रियों ने कि जब ओबीसी का बिल पास हो गया और सरकार ने कहा कि कुछ और बीमा के बिल, कुछ दूसरे बिल वो पास करना चाहते हैं तो उनको थ्रेटन धमकाया गया,
जी, मतलब ये शब्द जोर जी। दे करके प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमको वहां पे धमकी दी गई कि अगर आपने कोई दूसरा बिल पास करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा अंजाम लेकिन होगा। प्रशांत ये ऑन देखिए, रिकॉर्ड प्रहलाद ये जोशी ने अभी विपक्ष आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सुनी लगातार होगी, सरकार और को जोर भगोड़ा देकर कह रहा कहा कि इस तरह विपक्ष कह जी। रहा है कि 2 तो दिन इस पहले तरह- आपने सदन की कार्रवाई खत्म कर दी, अनिश्चितकाल के लिए उसे स्थगित कर दिया। 13 तक वो कई मुद्दे उठाने वाला था, लेकिन आपने 11 को ही सब खत्म कर दिया और उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं बचा। ये चल क्या रहा है? क्योंकि सरकार ये पूरा जो कुछ हुआ है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है और विपक्ष सरकार को। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि पहले दिन से ही मानसून सत्र में गतिरोध बना हुआ था, हंगामा हो रहा था। हालांकि जब ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सब ये बात सुनी, सबको कहा था कि हर सदस्य का मत जो है इम्पोर्टेंट है, उनकी बात को रखी जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने के मूड में था, और वो विपक्ष दरअसल में 2 अहम सबसे बड़े मुद्दे पे सरकार को लगातार घेर रहा था और अपनी मांग पड़ा हुआ था। वो 2 मुद्दे ऐसे थे जिस पर सरकार जो है उनकी बात मानने को कभी तैयार नहीं हुई। वो था कृषि बिल और पेगासस पे चर्चा। पेगासस पे चर्चा और कृषि बिल पे चर्चा तो हुई, लेकिन उस दिन हंगामा। ठीक है प्रशांत, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी और किस तरीके से वो विपक्ष पर हमलावर है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले पर और कैसे सरकार को घेरा था, जरा वो सुन लीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूं। जाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूं यहां हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। तो सरकार विपक्ष पर, विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सदन नहीं चलने से नुकसान जनता का हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।